हेलो नहीं आप 5 मिनट थामा अरमान भाई फोटो हो रहा है ना फिर भी क्यों गोली लग गई सचिन के ऊपर बाइक चाहिए। थैंक यू। वो आई ना अक्षरा से बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स अ स्वीट 16 IFA year and that too in Malaysia, so I'm looking forward to going because last year I was nominated for Grand Masti and I'm fortunate enough that I was at least nominated. Getting an award or not getting an award is not the point. The point is at least you get nominated because IFA is not something which is small. It's like a very, very reputed form of medium, and you go and your films get acknowledged on the global platform. And this year it's happening in Malaysia, and it's the 16th year, so it's going to be more youth, more fresh, more young, and it's going to be a lot of fun, and you're going to enjoy a lot of tourism. अवार्ड एक्टर के लिए कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है अवार्ड? मेरी लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप देखिए जैसे शाहरुख खान, उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, आज तक अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ही लाइक अ लिटिल चाइल्ड बेबी, लाइक व्हेनेवर ही गेट्स हिज अवार्ड ही फील्स सो गुड. सो आप देख सकते हैं जिनको मिलता है उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है. आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड ऑफ द डे आपका काम एक्नॉलेज होता है, और आईफा जैसे मीडियम में एक्नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है. आई होप मेरी भी 5 फिल्में इस साल रिलीज़ हो रही हैं. आई होप कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि कुछ नॉमिनेट हो जाए कि मैं भी एक अवार्ड लेके घर जाऊं मुस्कुराते हुए. बहुत ही अच्छा लगता है. एज अ चाइल्ड व्हेन यू गो टू स्कूल यू गेट you participate in sports or you come first in your class, you get a certificate or a medal, so that is also an honor, and if you get an award, it's like the moment for you and your family. So आमिर खान जो है कल 50 साल पूरे कर लेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? Really? He looks so young. 50, I really doubt. I think he's just getting young, and it's not number, like age is just a number, and I don't think so it's really to do with the age, like 50 or 60 or 40, it's just the numbers. And I think it's just getting better with the age, don't you think so? It's like a wine, like the older the better. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. थोड़ा पीछे. Yeah. हाँ, क्लोज. Thank you. Bye. Thanks. कहा है कि वो डिमांड्स हम पूरी करेंगे, तो क्या रिएक्शन आपका होगा एज अ सेलिंग? If they say they're going to do it, then I feel they will do it. So yeah, that's my feeling. If they said they are going to act on it, they will. So. पर इस प्रॉब्लम्स को लेकर क्या कहेंगे कि आपको भी Problems, though, it is a problem, but now since it's being worked on, so I guess it'll be resolved soon. Yeah. पर सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है. Yeah, I mean, yeah. See, he's responding as a citizen, so he's writing as a citizen, so he wrote from a citizen's point of view. थैंक यू. There are rumors कि Shruti Hassan is going to get married. So how true are these? Really? Yeah. Really? Wow. Okay, I didn't know that. Wow. No, No. I don't know about that. Wow. अक्षर, अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के आपको 24 आवर्स स्पेंड करने हो, तो आप किनके साथ करेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे वो 24 घंटों में? I'd spend it with family and definitely would do something productive and have lots of fun with my family, spend quality time with them and my friends. Yeah. But which big thing would you like to achieve?
Good memories, I think. I guess, yeah, good memories to take along with me. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स Not as yet, nothing is confirmed as yet. अभी बात चल रही है, तो अभी के लिए कुछ confirm नहीं हुआ है. Thank you. Oh, Ayushman. आई थिंक आईफा को मैं बचपन से देख रहा हूँ और 16 साल पहले मैं स्कूल में था और तब से आईफा फॉलो कर रहा हूँ और पहली बार शायद इंडियन अवार्ड कोई आउटसाइड इंडिया गया था और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडियन एक्टर्स को देखकर. सो आई थिंक आईफा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली हु स्टे अब्रॉड NRIs के लिए. हाँ, सबसे अच्छी बात यह कि मलेशिया में हो रहा है, इट्स नेक्स्ट डोर. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जेट लैग नहीं होते, मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं जब भी वहाँ पर लैंड करते हैं. तो 2-3 दिन, नहीं तो अगर आप कनाडा कर रहे हैं, US कर रहे हैं, 3-4 दिन तो आपको जेट लैग उतारने में लग जाते हैं. पर आई थिंक ये अच्छा होगा एक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए कि पास में ही हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. लास्ट ईयर जो इतनी अच्छी फिल्में आई बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरी लास्ट ईयर की 3 फेवरेट फिल्में हैं, इनफैक्ट 4 फेवरेट फिल्में हैं. एक है पीके, क्वीन, आंखों देखी और हैदर. आई थिंक इनको अवार्ड मिलने चाहिए. आयुष्मान, आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं और अगर आपके पास आखिरी 24 घंटे बचे तो आप क्या करेंगे? यार मैं अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ और तो क्या होगा. आई थिंक बस हैप्पीनेस अचीव करना चाहता हूँ यार. ये बहुत इंटेंजिबल सी चीज़ होती है. आई थिंक द पर्सनल पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी कुछ मटीरियलिस्टिक मैं सोच के नहीं आऊँ कि मैं ये खरीदूंगा या फिर ये गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक यू शुड बी जस्ट पर्सनली हैप्पी एंड हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट. आयुष्मान, वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स विद आईफा, लेकिन सेंसर बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. रिसेंटली डायरेक्टर सुदीप मिश्रा has commented that you know फरहाद मिलानी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का, बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन है. इस बात पे आपका क्या रिएक्शन? आई थिंक एक तरह से हमारी सोसाइटी एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड कई बार एग्रेसिव हो जाता है. हमारी फिल्म दमना के एशिया में काफ़ी ज़्यादा कट्स हुए थे. इतने ज़्यादा भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था वैसे, मतलब 1-2 वर्ड्स हैं, जैसे हरामखोर को कठोर कर दिया था और हरामी पने को हमने छिछोरापन कर दिया था. तो आई थिंक ये हमारी फिल्म को इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में होती हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप A रेट दे ही चुके हो तो फिर सेंसर करने की क्या जरूरत है. ऑलरेडी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो देखने जाएंगे. सो आई थिंक वो जितना रियल हो सके उतना सिनेमा के लिए अच्छा है और उतना उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है. आई एम अ ह्यूज आमिर खान फैन. इनफैक्ट जब से क़यामत तक मैंने देखी थी तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मेरी फेवरेट फिल्म जो जीता वही सिकंदर है. आई थिंक वो फिल्म जो थी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी. सो आई वुड लव टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम अ ह्यूज फैन सर. सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक. टोल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो टोल पर काफी वक्त देना पड़ता है. हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था यही सारी कंप्लेंट्स के साथ सीएम को, और सीएम ने उस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो कोशिश करेंगे इन डिमांड्स को कंप्लीट करने में. क्या कहेंगे? क्या डिमांड्स है, मतलब वो समझ नहीं आया. जैसे टोल पर गेट्स बहुत कम है, हाँ. तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को लाइन से खड़े रहने पे. करेक्ट. वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, उसे हटाना चाहिए. आई थिंक सिर्फ टोल्स को लेकर नहीं, ओवरऑल सारी रोड्स पे गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली मुंबई जो है वो इतने सारे लोगों के लिए बनी भी नहीं थी शायद. एक ही रोड हमारी नॉर्थ से साउथ तक जाती है, तो हम क्या करेंगे. एक सी लिंक है और बाकी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है. तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस वाला एक लिंक रोड है, उस पर पूरी मुंबई सर्वाइव करती है. तो आई थिंक हमारे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी सिटी में, और जितना हमारी सिटी एक्सपैंड करेगी उतना ज़्यादा अच्छा है.
थाने साइड या फिर जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे ऑफिस सारे अंधेरी में हैं, कुछ ऑफिस अगर हमारे बाहर चले जाएंगे, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट आई थिंक एक हेलीकॉप्टर हर एक को ले लेना चाहिए, वो एक ऑप्शन। सचिन तेंदुलकर को बहुत ही रिजर्व पर्सन माना जाता है, वो जल्दी किसी चीज के लिए रिएक्ट भी नहीं करते, पर ऐसे में उनका सीएम को लेटर लिखना, क्या लगता है आपको कि वो मतलब एज अ सिटीजन उन्होंने एक कदम बढ़ाया, तो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं? आई थिंक वो एक ओपिनियन लीडर है। सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, और हर कोई उनको लुक अप टू करता है, और जो वो कहते हैं सब सीरियसली मानते हैं। तभी सीएम साहब ने बहुत इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया। अगर आम आदमी कोई करता तो शायद ना इतना रिप्लाई होता, बट इट्स ग्रेट दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सोचते हुए वो टोल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या फिर जो शहर की गंदगी है उस पर कमेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम हिज साइड। आयुष्मान सर, दम लगा के हमेशा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को आप कर रहे हैं तो यार अब मेरी घर वापसी हो रही है। इनफैक्ट मैं सुजीत सरकार के पास वापस जा रहा हूँ तो मतलब वो उनके साथ एक फिल्म करूंगा बहुत जल्द। आगरा का डाबरा शायद शूट होगी, सर्दियों में शूट होगी। सो दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट आई हैव। जॉन ने कहा था कि आपके साथ एक हाँ, वही फिल्म है मेरी, तो वही सुजीत सरकार जॉन अब्राहम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय।